Hello everyone, this is Aisha and you're watching my YouTube channel. I hope you all are safe and fine. Dear all, please take care of yourself and your family and your friends too. As if we are going through a pandemic, a very difficult and a crucial time for all of us. So I heartily pray for your good health and success. Okay, so today we are going to learn Maharashtra Board Geography chapter number 3, that is the humidity and clouds. But before I move ahead with my lecture, I request you all to please do like and subscribe my channel and press the bell icon next to it for the latest update, and please give me a thumbs up if you like my videos. Okay, so let's get started. Chapter number 3, that is the humidity and the clouds. Now humidity and clouds, anyways, after looking your chapter, we come to know, after reading the topic, we come to know that this chapter is divided in two parts. Okay, one is the humidity and the another one is the clouds. Now सबसे पहले I'll make you to understand what do you mean by humidity. Many of you might not be knowing it. What do you mean by humidity exactly? Though you have studied in your lower class, then too you might be knowing what do you mean by humidity exactly. Humidity का मतलब होता है नमी. ठीक है, उसको ह्यूमिडिटी के मतलब को नमी या तो फिर मॉइस्चर, दैट इज नोन एज व्हाट ह्यूमिडिटी. ओके, नाउ look at the picture shown in the figure 3.1. Discuss the weather condition shown in the pictures in the class and write the description in the boxes below. Okay, now the first one, it is very sunny today. Here the now first one, the first picture, it is very sunny today. Okay, the wind has stopped blowing. I foresee sandstorm. Let's go quickly inside the house. Yes, even I feel the same. Come, let's go fast. Now in first picture, a husband tell to his wife कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही आज गर्म हो रहा है. It's a very sunny day today. So wind stopped blowing. I feel, मुझे ऐसे लग रहा है कि रेत का तूफान आने वाला है. The wife replied, yes, I also feels the same. Come on, let's go home fast. In the second picture, अभी first picture में आप लोगों ने क्या देखा, ये कौन सा एरिया है. सी इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक. इट्स नॉट मेंशन, आई हैड ऑलरेडी मेंशन, ये मैंने लिखा है. ठीक है, ये ये ड्राई एंड हॉट एरिया है, हॉट रीजन है. इट इज़ कॉल्ड एज डेजर्ट रीजन. इट्स अ राजस्थान रीजन है. ठीक है, डेजर्ट रीजन है, राजस्थानी रीजन. आप लोगों को पता चल रहा होगा ये पिक्चर देख के. नाउ in second picture, buddy, it is very hot today. Yes, Soham, I am literally soaked because of the sweat. Now in second picture, it's a local region, हमारी तरह एक local place है, where one friend says to another one that it's very hot today. The another one says, yes, मैं तो पूरा पसीने से भीग गया हूँ. I am literally soaked. I am literally soaked because of sweat. Okay, in the third picture, you can see children, come fast, wear your sweaters and then play again. Mummy, please let us play, please. Now in this third picture, what you can see, this is ये जम्मू का, सॉरी ये कश्मीर टाइप प्लेस है. ये कश्मीर का जगह लग रही है हम लोगों को. ठीक है, चिल्ड्रन वेयर द मदर कॉल्स टू देयर चिल्ड्रन, कम फास्ट एंड वेयर योर स्वेटर्स. वेयर चिल्ड्रन से, नहीं मम्मी थोड़ा रुको, हम लोगों को पहले खेलने दो. वहाँ पे कूल एंड ड्राई रीजन है. ओके, हैज़ इफ वी नो कश्मीर इज़ अ माउंटेनियस रीजन, जहाँ वहाँ पर हमेशा वहाँ पर ठंडा ही रहता है, और हिमालय ऑल्सो पासिस थ्रू कश्मीर. ओके, so let's move forward with an explanation part. Now geographical explanation. Now children, generally we keep talking about the weather conditions. Now what do you mean by weather? Weather का मतलब क्या होता है? Weather का मतलब होता है मौसम. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर कंडीशन. वी कैन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, आज बहुत ठंडी लग रही है, आज बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है. ऑफन वी कम अप विद दिस ऑल एक्सप्रेशंस, राइट. वी कैन आइडेंटिफाई द वेदर कंडीशंस थ्रू द कॉन्वर्जेशंस अबाउ. वॉट एवर द कॉन्वर्जेशंस आर गिवन अबाउ, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द वेदर कंडीशन, वेदर इट इज़ ड्राई और hot or humid or cool or dry. Okay, now we experience the dampness or dryness. The dampness means what, slightly जो wet होता है. ठीक है, that is moisture.
okay, or dryness, सूखापन in the air throughout the year. Now these all things, ठीक है, these all climatical conditions, these all weather conditions we almost experience throughout the year. हम लोग पूरी साल ये सारी चीज़ें experienced करते ही है. Okay, the changes occurring in the weather conditions in desert areas, coastal areas and mountainous area is evident from the figure. Evident means what? It is visible or it is proved from the figure. Now the changes which occurs in weather condition in desert areas. Desert areas बोले तो देखो फर्स्ट वाला राजस्थान हुआ, ठीक है, डेजर्ट एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ गर्म लू चलती है, दैट इज़ नोन एज व्हाट डेजर्ट रीजन. देन कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज बोले तो जो समंदर किनारे, दरिया किनारे, नदिया किनारे. ओके, माउंटेनियस एरियाज बोले तो पहाड़ी एरिया. ओके, इट्स एविडेंट फ्रॉम दी फिगर. Next one, Rajasthan lies in the region with dry and hot air. It is hardly any moisture in the air. People wear loose cotton clothes. Now Rajasthan is a very dry region. Okay, वहाँ dry सूखी सूखी हवा चलती है. Okay, it is hardly any moisture. There is no moisture in the air. Now what is moisture holding capacity क्या है? What is proportion of moisture holding क्या है? This I am going to teach you. Okay, so आगे आएगा. ठीक है, अभी इतना समझ लो कि राजस्थान में हार्डली एनी मॉइस्चर, बहुत कम मॉइस्चर वहाँ पर पाया जाता है. पीपल वेयर इन राजस्थान, पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स. व्हेन डू वी वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स चिल्ड्रन? हम लोग लूज कॉटन क्लोथ्स कभी पहनते हैं जब हद से ज़्यादा हमको गर्मी लगती है. ओके, राइट. सो राजस्थान ऐसा एरिया है जहाँ पर हद से ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर हॉट और ड्राई क्लाइमेट है. ओके, then comes Kashmir Valley. Kashmir Valley lies in a region with cold and dry air. Moisture is minimal in the air. What do you mean by minimal? Minimal means very less. See, the meaning I had already mentioned here. Minimal means what? It is very less. People covers themselves with warm clothes. Now people in Rajasthan, they covers themselves with, the people in Kashmir, they covers themselves with warm clothes. वो अपने आप को गर्म कपड़े से कवर करते हैं. क्यों? बिकॉज जो काश्मीर है, it's in mountainous region. See, I show you, the Kashmir is a mountainous region. माउंटेन, वहाँ पर बहुत ही ठंडक पड़ती है और वहाँ से हिमालय पहाड़ भी पास होता है. ओके, सो पीपल मोस्टली दे वेयर warm clothes in Kashmir. Okay, then the third comes is about Mumbai. We are talking about Mumbai, right? ये मुंबई मेरी जान. Right, the air is hot and humid in Mumbai. Now see children, in मुंबई में क्या होता है, हम लोगों को कोई भी मौसम में पसीना बहुत आता है. कोई भी मौसम हो, चाहे वो गर्मी का हो या बारिश का हो, तो वहाँ पर आप लोग ऐसा नोटिस करते हो कि हमको पसीना बहुत आता है. इवन इफ ठंडी का भी मौसम रहता है तो ठंडी हम लोगों को लगती है, बट हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग को स्वेटिंग आना चालू हो जाती है, हमको पसीना आना चालू हो जाता है. व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज हमारी मुंबई की जो हवा है, ठीक है, इट्स एन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. यहाँ पे द proportion of moisture, the proportion of humidity is very high in the air. जो मुंबई में proportion of humidity, proportion of moisture हवा में है, it's very high. Okay, in addition, if dark clouds cover the sky, अगर dark clouds covers the sky, तो definitely अभी dark clouds अगर आ गए sky में तो अभी बारिश होगी. जो जहाँ पे पहले से ही गीलापन है और वहाँ पे बारिश होगी, तो मॉइस्चर की जो प्रोपोर्शन है, मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है, वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है. ओके, अंडरस्टूड everyone this much? I assume everything is clear now. Okay, in the above discussion, the words hot, moist, cold, etc. shows the climatic, the condition, shows the condition of the air. Now hot, moist and cold, जैसे कि आप लोग ह्यूमन फीचर्स कैसे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, he is fat, he is thin, he is tall, right? Same way, these are the conditions of a human features. Same, ये भी hot, moist और cold है, ये air के conditions है. ये air के जैसा एकदम गर्म हवा चलेगी या एकदम गीली हवा चलेगी, ठीक है, मॉइस्चर वाली हवा चलेगी, जो हवा भी चलेगी और हमको वहाँ पे पसीना भी आएगा. ओके, एंड द कूल, जो ठंडी हवा चलेगी. ओके, शोज द कंडीशन ऑफ द एयर. दे रिलेट टू द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर. अभी एयर में मॉइस्चर भी एक कंटेंट है, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड, मॉइस्चर इज कंटेंट है विच इज़ रिलेटेड टू एयर. मॉइस्चर इन द एयर इज इनविजिबल. इनविजिबल मीन्स वॉट? अनेबल टू सी, जो आप नहीं देख सकते हो. मॉइस्चर कोई देख सकता है क्या? No, moisture in the air is completely invisible, but it is the major component. Major component means
a very important factor of air which is taken into consideration while discussing the weather of any place. If you are discussing or if you are studying a weather of any place, किसी भी जगह का आप अगर वेदर पढ़ रहे हो या उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, द फर्स्ट थिंग विच विल सी इज द मॉइस्चर, द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंस इन द एयर, कितना मॉइस्चर है जो एयर में प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट, for precipitation to occur in any place. Now what do you mean by precipitation? Meaning is already mentioned here. Precipitation means water formed by an atmosphere, that is called as precipitation. बारिश, precipitation का मतलब होता है बारिश. Okay, to occur in any place, presence of moisture in the air is important. बारिश कहीं पर भी होने के लिए the proportion, the presence of moisture, the presence of humidity in the air is very very important. Okay, नाउ थिंक अबाउट इट. अभी ये सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन यू एक्सेल ऑन द ग्लास ऑफ योर मिरर, व्हाट हैपन्स इफ यू ट्राई टू डू दिस इन समर? व्हाई डजंट दिस हैपन नाउ इन विंटर सीजन? इफ यू एक्सेल बोले तो हमारी सांस बाहर की तरफ छोड़ना, ठीक है. इफ ड्यूरिंग विंटर इफ यू एक्सेल इन अ ग्लास ऑफ अ मिरर, व्हाट हैपन्स, क्या होता है? एंड इफ यू ट्राई टू डू दिस इन समर, व्हाई डज इट हैपन? नाउ चिल्ड्रन, see, listen to it very carefully. In winter season water holding capacity is low. जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ठंडियों में वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चलती है. ओके, एंड ऑल्सो द टेम्परेचर इन विंटर सीजन इज़ लो. अभी आप लोगों को पता होगा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 0 डिग्री. फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीज में आइस बर्फ आइस बनता है एट बर्फ़ बनता है एट 0 डिग्री. 0 डिग्री पे बर्फ़ बनता है मीन्स ठंडी, यानी जितना नीचे नीचे टेम्परेचर आएगा मतलब उतनी उतनी विंटर सीजन आएगा, उतना उतना ठंडी बढ़ती है. 100 डिग्री पे हमारा पानी बॉयल हो जाता है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री, ठीक है. तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो सेम वे इन विंटर सीजन द टेम्परेचर इज़ लो, ठीक है. द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ लो. ओके, वेयर हैज़ इन समर सीजन, जब गर्मी होती है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हाई एंड ऑल्सो द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग समर सीजन. वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई हो जाता है इन समर सीजन. Now evaporation. Now see, very important and very interesting. All of you listen it very carefully. Evaporation, this you might have been learned right from your 4th standard. What is evaporation? ठीक है, the process of converting water into a steam or a water vapor because of sun's heat. The water on the earth gets converted into water vapor. This process of evaporation is depend on the dryness, temperature and the speed of the wind. Now see, I'll show you something. Evaporation, abhi what is this? You can see the picture over here. You can see this evaporation, ठीक है. evaporation कैसा होता है? ये sun है, ठीक है. सन की गर्मी से पानी गर्म होता है और पानी गर्म होने के बाद में जो वाफे बनती है, जो ये भाप बन रही है, दैट इज़ नोन एज व्हाट? इवोपरेशन. अभी ये भाप ऊपर जाके ढग बनता है, ठीक है. ढग बोले तो क्लाउड्स बन जाता है. ये भाप ऊपर जाके क्लाउड्स बनता है, ठीक है. एंड क्लाउड्स देन चेंजेस इनटू कंडेंसेशन. दिस कंडेंसेशन बोले तो इवोपरेशन मीन्स व्हाट? वाटर चेंजिंग इनटू अ स्टीम, गैस में बन रहा है, ठीक है. और कंडेंसेशन मीन्स जो गैस है वो वाटर में बनता है. फॉर एग्जांपल देखो, आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा होगा राइट फ्रॉम योर बिगनिंग, राइट फ्रॉम योर 2nd और 3rd स्टैंडर्ड. यू माइट हैव बीन लर्न अबाउट दी वाटर साइकिल. दिस इज अ साइकिल. ये साइकिल ये जो घूमता रहता है, ये सन है. सन की गर्मी के वजह से इवोपरेट हो रहा है पानी. ओके, द सरफेस वाटर गेट इवोपरेट्स. ओके, ये इवोपरेशन होके यहाँ पे ढक बन रहा है. दिस इज एन इवोपरेशन प्रोसेस वेयर पानी ओके वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर स्टीम वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ दिस वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू प्रेसिड कंडेंसेशन. जो कंडेंसेशन बोले तो क्या, जो गैस है वो लिक्विड में जा रहा है. जो गैस है इट कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड फॉर्म. ओके, मीन्स द कन्वर्सेशन ऑफ वाटर, दैट इज कन्वर्सेशन ऑफ वाटर वेपर into water, a conversation of gas into a liquid, ठीक है. a conversation of water vapor into a water, that is known as what? Condensation. अभी ये condensation से बारिश हो रही है राइट. इस बारिश को what we call it as precipitation. Okay, all of you clear? I assume that you are clear, ठीक है. If you are not clear, again you can rewind my lecture and you can see to it.
If the air is dry and hot, the day rate of evaporation increases. The process of evaporation continues even in dry and cold air. Okay, now if the air is dry and hot, the rate of evaporation also increases. As if I had already explained you, in summer जब गर्मी रहती है तब the temperature increases, so the rate of evaporation also increases. The process of evaporation continues in dry एंड कोल्ड एयर. अभी वो ड्राई और हॉट एयर में भी होता है एंड कोल्ड एयर में भी ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है. ऑन अदर हैंड इवोपरेशंस ऑकर्स वेरी स्लोली इन मॉइस्ट एयर. इवोपरेशन जो पानी की भाप बनने की क्षमता है वो बहुत ही स्लोली, बहुत ही कम होती है जब हवाएं गीली रहती है, जब हवाएं में मॉइस्चर रहता है. ओके ना, मॉइस्ट एयर. इफ़ द वेलोसिटी मीन्स व्हाट? स्पीड. ओके, व्हाट यू मीन बाय वेलोसिटी? Velocity means speed. Okay, velocity and temperature of the air is high, then evaporation occurs rapidly. If the wind is blowing slowly and the air is cooler, the evaporation occurs slowly. Okay, now next which we are going to learn, this everything is concluded in a form of experiment. Now see, the proportion of water vapor in the air is called humidity. Okay, the proportion of water vapor बोले तो गैस, वेपर बोले तो gaseous state में आता है, in the air is called humidity. Okay, the dryness or dampness, सूखापना और wetness of the air depends upon the proportion of water vapor. जो dryness है और जो dampness है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच मॉइस्चर इज प्रेजेंस इन द एयर. एयर में कितना मॉइस्चर है, कितना गीलापना है, उस पर ये ड्राइनेस और डम्पनेस डिपेंड करता है. एयर कैन होल्ड मॉइस्चर इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली. एयर कैन होल्ड मॉइस्चर इन लिमिटेड क्वांटिटी. ठीक है, वो एयर है तो कितना भी मॉइस्चर ले लेगा ऐसा नहीं. इट कैन होल्ड इन अ लिमिटेड क्वांटिटी में भी रहेगा और लिमिटेड टेम्परेचर में भी रहेगा. अंडरस्टैंड, वो लिमिटेड टेम्परेचर में, लिमिटेड दिस यू will understand with this experiment which I'll show you. ठीक है, this implies that warmer air can hold more moisture than a cold air. ठीक है, air cools down in its moisture holding capacity reduces. अगर air ठंडी होगी, ठीक है, ठंडक में क्या होता है, ठंडी में क्या होता है, टेम्परेचर लेस होता है, लो होता है, सो वहाँ पर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसका रिड्यूस हो जाएगा. दिस सजेस्ट दैट वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन द कोल्ड एयर. गर्म हवा कैन होल्ड मोर मॉइस्चर. ठीक है, मोर मॉइस्चर कैन देन द कोल्ड एयर. गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है, सो इट कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, इसलिए हमको ज़्यादा पसीना आता है, वेरस ठंडी में टेम्परेचर लो होता है. ठीक है, ओके, तो वहाँ पर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी लो हो जाती है. एट अ सर्टेन टेम्परेचर द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर बिकम्स इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट टू इट. दिस कंडीशन ऑफ एयर इज कॉल्ड सेचुरेशन ऑफ द एयर. नाउ व्हाट इज दिस सेचुरेशन? यानी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना क्या सेचुरेशन बोले तो क्या, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना वो एयर अपने में एयर में मॉइस्चर ले सकता है वो ले लेता है, बाकी जब ओवर हो जाता है, सो इट कम्स डाउन इन अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इट कम्स डाउन इन अ फॉर्म ऑफ रेन. ठीक है, नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल. अभी आप लोग एक ट्रे ले लो, ठीक है, एक ट्रे ले लो, एक अगर छन्नी ले सकते हो आप लोग, आटा छानने वाली या कोई भी गेहूँ छानने वाली, आप वो छन्नी ले सकते हो. यू कैन टेक अ स्पॉन्ज. ठीक है, you can take a sponge. If you want, I'll show it to you all. Okay, now you can say, आप लोग ऐसे एक छन्नी ले सकते हो, एक स्पॉन्ज ले सकते हो. ओके, एंड ऑल्सो आई हैव अ वाटर बॉटल ओवर हियर. नाउ इफ आई पोर द वाटर ऑन द स्पॉन्ज, ये एक हद तक पानी लेगा. ठीक है, एक हद तक पानी लेगा. जैसे ही इसकी कैपेसिटी फुल होती है, ठीक है, इन लोगों ने बोला स्पून से पानी डालो, अब मैं स्पून से खेलूँगी तो रात हो जाएगी मुझे. ठीक है, अभी ये जितना पानी ले सकता है वो ले रहा है. इट्स टेकिंग अ वाटर. अभी जैसे ही इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, व्हाट हैपन्स, द वाटर विल स्टार्ट लीकिंग. यू कैन सी द वाटर विल स्टार्ट लीकिंग. अब ये जो पानी नीचे गिरेगा, ठीक है, ये जो पानी जो लीकिंग वाटर वो जो नीचे गिरेगा, दैट इज़ what children, that is rain.
that is called as what? That is called as rain. Okay, समझ में आया? rain या precipitation उसको हम लोग बोल सकते हैं. All of you understood this experiment? What all things you can use? अभी आप लोगों को बोला है कि ट्रे में नेल से खड्डा करो, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. यू कैन यूज दिस नॉर्मल सीन्स. Okay, then you can use a sponge, you can use a tray that will hold your water, you can use a water bottle in spite of spoon, and you can then put a water, you can pour a water on this sponge and you can see the quantity. ठीक है, जितना अभी सपोज समझ लो ये स्पॉन्ज जो है ये एयर है, जिसने उतना पानी ले लिया जितनी उसकी कैपेसिटी थी. अब ओवर पानी जो एक्स्ट्रा है इट विल कम डाउन इन अ फॉर्म ऑफ precipitation. What is this precipitation? It is rain. Okay, all of you understood this much. This experiment also we have done. Now see what all things we observe. Question answers. What happened to the water which poured initially? So sponge will क्या हुआ जब आपने पानी इनिशियली डाला तो क्या हुआ, क्या देखा आपने कि जो स्पॉन्ज में पानी था वो सोख रहा है. ठीक है, उसने पूरा चूस लिया है क्योंकि उसमें उतनी होल्डिंग कैपेसिटी थी, बिकॉज ही हैज़ अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. द स्पॉन्ज हैज़ अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ठीक है, सो द स्पॉन्ज विल सोक दी वाटर. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. व्हेन यू आर पोरिंग वाटर ऑन अ स्पॉन्ज, what did you expect when you are pouring water? अभी आप पानी डाल रहे थे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पॉन्ज बहुत जल्दी गीला होने वाला है. इट विल बिकेम वेट. What happened when you poured more water on the sponge? Water will start leaking. ठीक है, अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा जितना वो होल्ड कर सकता था उसने होल्ड किया, अभी उसमें ज़्यादा पानी डालने के बाद क्या हो रहा था कि वाटर विल स्टार्ट लीकिंग. पानी लीक होना चालू हो गया. ओके, सो ये लीकेज वाला पानी है जो हमारे स्पॉन्ज में से पानी निकल. सपोज द स्पॉन्ज इज़ अ एयर. ये जो स्पॉन्ज है दैट इज़ अ एयर. अभी वो लीकेज वाला पानी जो नीचे गिरा, दैट इज़ वॉट? दैट इज़ प्रेसिपिटेशन. दैट इज़ वॉट? दैट इज़ अ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, वो बारिश है जो नीचे गिर रही है. ओके, वॉट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस? ऑल एट सर्टन लिमिट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंडेड एंड इट्स बिकम सैचुरेटेड. वॉट सैचुरेटेड का मतलब क्या रहता है? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना पानी चाहिए उतना सोक कर लिया, और जो बचा हुआ पानी इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ precipitation. This is known as what? Saturated of the air. Okay, all of you clear? If you have any doubt or any queries, please do not hesitate to message me on the comment box, and please do like and subscribe my channel. Okay, so bye bye everyone and take care.